The Himachal Pradesh Road Transport Corporation has initiated an inquiry following a complaint about a certain video that played in one of his buses, allegedly defaming a leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. The incident that apparently happened on the 1st of November when HRTC bus from Dhali depot was operating on the Shimla-Sanjauli route. And according to the complaint, an audio clip that was being played on the bus purportedly that was defaming political figures like Rahul Gandhi. Following the complaint, notices that have now been issued to the bus driver and the conductor seeking an explanation on how and why it was allowed, where such audio clip which questions when it comes to political figures in the state like Rahul Gandhi was allowed to be played on the bus. Now over this we are already getting reactions on part of the BJP, which has been questioning the priorities of the Himachal Pradesh government, saying that if a passenger is playing a video which is going against Rahul Gandhi, then is it necessary to file a complaint or to raise the matter and seek an explanation on this part? Because here, when it comes to the priorities of the Sukhu government, is being questioned on part of the BJP. So a notice that has now been served to the driver and the conductor of the state-run buses, and BJP now saying, bus karo, this is the high-handedness on the part of the Congress-run state government, saying that this is the Congress's emergency mindset that has been exposed. So now controversy on wheels that is now being looked upon as far as the bus that seems to be running, the Himachal state bus, and apparently a passenger was playing a video which went against Rahul Gandhi. Getting a word from Poonam, who is joining us right now. पूनम, अभी तक की जो जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है, एक्सप्लेनेशन की मांग करी है, कंप्लेंट अगर दायर की जाती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन किस बात की? क्या ड्राइवर और कंडक्टर ये फैसला ले सकते थे या डिसाइड कर सकते थे कि कोई पैसेंजर अगर कुछ सुन रहा है अपने फोन में तो वो क्या सुने और क्या ना सुने? हेलो पूनम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आ रही है। जी, तो फिर जी बताइए। जी देखिए, ये जो इंसिडेंट है वो 1 नवंबर का है, जब जा रहे थे, तो ये काफी बीजेपी जो है अभी रिएक्शन दे रही है इस पे कि ये काफी हास्यास्पद है कि जिस तरह जो है ड्राइवर और कंडक्टर को एक्सप्लेनेशन लेटर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है उस टाइम ऑडियो जो चल रहा था, डिबेट चल रही थी, मोबाइल पे एक पैसेंजर सुन रहा था, तो उस पे आप एकदम से बंद करवाते, आपने बंद क्यों नहीं करवाया, इस पर एक्सप्लेनेशन दिया जाए और 3 दिन में दिया जाए। लेकिन ये एक बात है कि आप एक पैसेंजर जो है उसका राइट है, आप बस में बैठे हैं, एक पब्लिक बस में आप बैठे हैं, तो उसमें कोई भी पैसेंजर यू हैव द राइट, यू कैन हियर एनीथिंग ऑन योर मोबाइल। तो उस पर जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इनका ध्यान जो है समोसा इंक्वायरी पे है, एचआरटीसी में जो बस कंडक्टर है उनका जो काम है उस पर ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि आप जो ऑडियो चल रही है, कोई क्या सुन रहा है, उस पर आप अंकुश लगा रहे हैं। तो ये किस तरह की चल रहा है, और जहां हिमाचल जो है इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, डेवलपमेंट जो है काफी रुक गई है, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ऑफिसर्स भी जो है इस तरह की बातों पर उनका ध्यान है। All right. So the questions that are being raised on part of the BJP, are these the issues of great importance that it seems that the agencies are seeking a response from the driver and the conductor of the bus? Let's in the meantime, if we talk about Poonam, क्योंकि अगर ये जानकारी जो मांगी गई है, कुछ आधिकारिक तौर पर आप जानकारी हमें दे सकती हैं, क्या वाकई में एक्सप्लेनेशन मांगी गई और किसकी तरफ से मांगी गई और कब तक सबमिट करने को कहा है जवाब? जी देखिए, हमारे पास अभी जो है लेटर, हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें लेटर आया है जिसपे साफ तौर पे लिखा गया है और एक्सप्लेनेशन भी उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कंप्लेंट उन्हें आई, पैसेंजर जिसे आपत्ति थी कि जो डिबेट चल रही थी राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें कुछ बोला जा रहा था, तो उसने जो है कंप्लेंट किया सीएमओ ऑफिस में। तो वो उस कंप्लेंट के आधार पर सीएमओ ऑफिस आदेश देता है एचआरटीसी डिपार्टमेंट को। एचआरटीसी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आदेश देते हैं कंडक्टर और ड्राइवर को कि ऐसे ऐसे बस जा रही थी 1 तारीख को और कंप्लेंट होती है 5 तारीख को। तो आप जो है 25 नवंबर को उनको एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाता है ड्राइवर और कंडक्टर से कि आपके बस में इस तरह जो है पैसेंजर हाई वॉल्यूम पे जो है डिबेट सुन रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ ये डिबेट चल रही थी, उसमें अखिलेश, राहुल गांधी और उस पर डिस्कशन चल रही थी, तो आप उस वक्त क्यों नहीं आपने बंद करवाया, ऑडियो क्यों नहीं बंद करवाया? तो उस पर जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है 3 दिन की, 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दिया जाए। आगे की क्या कार्रवाई जो है हम लगातार जो है ऑफिसर से कांटेक्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लेकिन
अभी तक उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। साथ में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, हम उन्हें भी जो एडवाइजर है उनसे हमने अभी 3-4 बार कॉल किया, लेकिन कोई भी आंसर वहां से नहीं मिल रहा है। All right, still waiting as far as reactions on part of the state government if this has been allowed, because it seems that the HP Roadways has ordered a probe into what defamatory audio on Rahul Gandhi in bus was played, but it remains to be seen if this matter would be taken up further, where an answer has been sought, an explanation that has been sought from the driver and the conductor of the bus. The BJP, on its other hand, has been raising issues saying that if this is the actual importance or the priority of the state government of Himachal Pradesh. हर्ष महाजन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। हर्ष महाजन जी, क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से एज फार एज एक वीडियो और एक ऑडियो जो बताया जा रहा है, जो शायद सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल फिगर्स जैसे राहुल गांधी के ऊपर, वो आपत्तिजनक लग रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार को? देखिए, ये तो बिल्कुल अब्सर्ड कोई डिसीजन है, इसका कोई सिर ना पैर है। अब जिसकी ये फ्री कंट्री, फ्री प्रेस और फ्री जो हमारे लोग हैं वो भी दे आर फ्री टू थिंक एंड टॉक वॉट एवर दे लाइक। अपना ये तो बिल्कुल ही कोई ऐसे लगता है कि कोई सपना आ रहा है कि जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो। तो हिमाचल में तो ये चीजें आम है आजकल इस गवर्नमेंट के साथ। तो आई एम सरप्राइज कि दे आर इतना लो चले गए हैं कि बस में ट्रैवल करते हुए कोई नहीं देख सकता। तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी का काम है, मैं समझता हूँ। जी, प्राथमिकताएं आखिरकार क्या है, उसके ऊपर क्या सवाल उठाए जाएंगे आपकी तरफ से कि क्यों अब जाकर, कम से कम 1 महीने पहले की घटना है और उस पर अब क्यों जाकर एक एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है? देखो, ऐसे पहले सोचना और बोलना और इसके ऊपर एक्शन लेना ही गलत है सारा। और इसको इतना बड़ा बना दिया है कि आदमी तो कुछ भी कहीं भी कुछ भी देख सकता है। व्हाट इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, वो तो कहीं भी देख सकता। तो इसके में कोई बेवकूफी का काम है तो सरकार का। चलिए, धन्यवाद आपका हर्ष महाजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो द बीजेपी इज रेजिंग इशू सेइंग दैट दिस इज अ फ्रिवलस मैटर एंड व्हाई इज दैट सो मच अटेंशन इज बीइंग गिवन टू इट ऑन पार्ट ऑफ सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बस ड्राइवर एंड द कंडक्टर एज टू व्हाई दिस पर्पोर्टेड ऑडियो क्लिप वाज अलाउड टू बी प्लेड ऑन द बस बाय अ पैसेंजर। तो ये है प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की। अर्थव्यवस्था जो है वो डूबती जा रही है, कंगाली की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ता जा रहा है। टॉयलेट पर टैक्स लगा रहा है, वहां पर जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित है, पर कभी समोसे की जांच और अब जांच किसकी हो रही है, डिबेट कौन सी देखी जा रही है। जी हां, एचआरटीसी की बस में एक व्यक्ति राहुल गांधी पर डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में शायद आचार्य प्रमोद जी और बाकी लोग थे, वो कुछ कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में। ये दूसरे व्यक्ति को नागवार गुजरी तो सीएम ऑफिस कंप्लेंट कर दिया और अब सीएमओ ने जांच बैठाई है। वहां पर जांच हो रही है एचआरटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर की कि भाई कौन सी डिबेट चल रही थी, कौन सी डिबेट देखी जा रही थी। ये है प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस की। ये खटाखट मॉडल जो है ना, ये हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना को बर्बाद करके रख देगा। तीनों जगह जहां पर भी कांग्रेस की सरकार आई वहां पर लूट, महंगाई मचाई और अर्थव्यवस्था को कंगाली की ओर ले जाए। और अब वहां पर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बदले, कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बदले कभी समोसे पर जांच, कभी टॉयलेट पर टैक्स। कर्नाटका में देखें तो सारे पैसे खत्म हो गए, लूट और झूठ की सरकार चल रही है। खुद के विधायक बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं बचा, पर उनकी भी प्राथमिकता क्या है, वाल्मीकि स्कैम, लिकर स्कैम। यही कांग्रेस का खटाखट मॉडल है। All right, Udit Raj of the Congress Party is also with us on the broadcast. Udit Raj ji, what do you make of seeking an explanation from the road bus driver and conductor over a purported audio being played by a passenger? Can the driver actually give an explanation on this issue? Because the BJP is saying that these are frivolous small matters that is being given priority by the state government. It's a very trivial matter, one, and second, that there is a office procedure rule for government employees that has to be looked into whether that violates office procedure rules. I was in government service. Government
officers and employees are not supposed to indulge any politics. This is a mandatory for an employee. But that has to look into. If they have not violated office procedure rules, then of course this... No, but why seek an explanation in the first place? If a passenger is playing something on their phone, how could one question that? So it's not a very big thing if the notice is issued. What happens is that it will be examined. And of course, if their conducts are not found unsuitable or their conducts are up to the mark, nothing will happen. But exactly, Mr. Raj, what is unsuitable in their conduct? I mean, the driver will be driving the bus, the conductor would be there in the bus if a passenger is playing something on their phone. What objection can they actually raise? There are written guidelines. You don't have to worry about it. In fact, I was IRS officer. I know that what are the office procedure rules. Thank you. All right. Mr. Udit Raj, thank you very much for joining in. Of course, the Congress leader himself is saying that it's a trivial issue, but this is part of said procedure if needs to be followed. However, the BJP continues to raise the issue, saying and questioning the priorities of the state government of Himachal Pradesh. We'll get you more reactions back after a short break.